اهدنا الصراط المستقيم صراط الله العظيم. دوسری پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی سماعت کر لیا. ایک بہت اتفاق پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. صلو علیہ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن لوگوں نے اس ماہ رمضان کا استقبال کیا، اچھے سے سواگت کیا، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، یعنی کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے، چاہے وہ تراویح کے طور پر ہو، چاہے خانے کھولا میں یا اپنے گھر میں رہ کر کے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اس طور پر ہو. اس کے علاوہ اور بھی تمام اخیار جو ذکر اللہ کے طور پر ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے اس مہینے میں کرنا اس طریقے سے ہے کہ باقی 11 مہینوں میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک نبی کے بدلے میں ایک ہی ثواب ملا کرتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس کا حال یہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے یا اس کے علاوہ کام اگر کرتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے، تو یاد رکھیں ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 70 نیکیوں کا ثواب ملا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بڑے لائق مبارکباد ہیں، لیکن آج افسوس کرنے کا ہی مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اس ماہ رمضان کا احترام نہ کیا، روزے نہ رکھے. رمضان ختم ہونے والا ہے، قرآن کی تلاوت نہ کیے، تراویح نہ پڑھے، اور حال تو یہ ہے کہ خود بھی نہ پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی نہ پڑھوائے. وہی اس ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے دور رہے اور اپنے اولاد کو بھی دور رکھے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بیٹے تم نے 11 ماہ کچھ بھی کیے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ فضل والا مہینہ ہے، یہ رمضان مبارک ہے. اس میں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اس میں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اس مہینے میں ہمیں احترام کرنا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو باہر میں جا کر کے کھانا نہیں، اس لیے کہ تم اگر دوسروں کے سامنے کھاؤ گے تو جو مسلمان روزہ ہوں گے ان کے سامنے بے ادبی اور اس مہینے کا بے احترام ہوگا، احترام نہیں کر پاؤ گے اور کہیں نہ کہیں پھر آگے چل کے ہمارا نقصان ہوگا. ایک دنیا میں بھی اس کے لیے بدنامی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بدنامی ہے. رب کے سامنے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو سلیقہ نہ سکھایا، اپنے بچوں کو یہ تربیت نہ دی کہ تمہارا بیٹا آوارے کی طرح کھاتے رہا تھا، نماز کے وقت میں باہر پھر رہا تھا، جمعے کے وقت میں باہر پھر رہا تھا. تو یہ اس طریقے سے بھی ہم احترام نہیں کر پاتے ہیں. تو میں خوشی اور مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس ماہ مبارک کا احترام کیا اور اپنے بچوں کو بھی ایک تربیت دی کہ یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے. دوسری پڑھی اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں کہ آپ جس جگہ پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، تراویح سنتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کو آپ بطور تراویح سنتے ہیں، اس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی پہلی سورت میں ہی بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ قرآن مقدس ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. شک تو دور کے بعد، شک کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت. اور یہ جانتے ہیں
कि पूरे मैनपुरी के अंदर जो हफ़ाज़ कराम का सिलसिला है और आज जो मसाजिद में तरावी पढ़ी जा रही है, मैं तो ये कहूँगा कि ये खानकाह रशीदिया की बदौलत है और ये सदका है। क्यों? सवाल भी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि शहनशाह मैनपुरी हुज़ूर रशीद मिल्लत जब अपने पीर और मुर्शिद के पास गए थे तो कोई उनके पीर आम शख्स नहीं थे, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी, बल्कि एक वली बाकरामत थे। और ये इन्होंने रशीद मिल्लत ने कई जगह पर अपने पीर के तलाश करने की कोशिश की, कई जगह रास्ते भटके, आखिर में एक जगह पर एक रशी के तौर पर उनके अंदर दिमाग में आता है और उसी रशी की हालत में हुजूर हाफिज साहब अली हुसैन साहब नाम था उनका, पीर मुर्शिद उनके ख्वाब में आते हैं और रास्ता बताते हैं। उस रास्ते के मुताबिक वो मुरादाबाद पहुंचते हैं। वहाँ जाने के बाद उनके पीर मुर्शिद ने कहा था कि सुनो, तुम रास्ते भटक रहे थे, तुम किस किस दर पर गए हो मुझे सब मालूम है, कोई एक पल नहीं होगा इस पल की मुझे खबर नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जब वहाँ जाते हैं तो वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि वो भी हाफिज कुरान थे। और उस हाफिज कुरान ने हुजूर रशीद मिल्लत के सर पर एक ऐसा ताज बांधा है जिस ताज की चमक की वजह से आज पूरे मैनपुर में हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं। उन्हीं का सदका है, यानी हाफिज मिल्लत हाफिज साहब का ये सदका है कि आज पूरे मैनपुर में हाफिज साहब करके तरावी सुना रहे हैं। और ये खानकाह रशीदिया में हाफिज कुरान आकर के हाफिज कुरान तरावी सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे इस खानकाह के अंदर आकर के हाफिज कुरान बन रहे हैं, कलाम अल्लाह की हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये सब हुजूर रशीद मिल्लत का सदका है। मैं आज एक बात ये भी बता दूं, क्योंकि अलविदा है और कुछ वक्त भी हो सकता है, कोई बात नहीं, इसलिए कि हर जुमे को वक्त नहीं मिल पाता और ना लोग दूर तरह से आते हैं। आज बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कि देखिए मदरसों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को सीधे राह पर लाने के लिए। एक बाप परेशान हो जाता है, अगर शराब छुड़ाना हो तो एक बाप कह करके अपने बेटे को थक जाता है, फिर उसको इमाम के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ताबीज़ बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई बाप से एक बेटा सुधर जाता तो फिर किसी की जरूरत पड़ती नहीं, जरूरत पड़ती। एक बाप की वजह से अगर बेटा नमाजी बन जाए, बिगड़ने के बाद, मैं बिगड़ने की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिए फिर उसको ताबीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी इमाम के पास शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जानते हैं एक बेटा या घर का माहौल जब खराब हो जाता है तो उस बाप टेंशन में दिमाग खराब हो जाता है। कुछ कुछ घर तो ऐसे हैं जिसके घर के गार्जियन पागल हो गए अपने घर वालों के चक्कर में। बेटा ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से इस तरह से दामन में दाग लगा हुआ है कि बाहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, ये मदरसे और खानकाहें तबलीग के लिए और तालीम के लिए इस तरह से काम करती हैं। अल्लाह अकबर कि मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद साहिब सज्जादा के साथ जाता था। ऐसे ऐसे महल्लात हैं जिस महल्ले में कोई एक शख्स फातिहा करने वाला भी नहीं है, फातिहा करने वाला नहीं है उस महल्ले में, मुसलमान है। अल्लाह अकबर, कोई नमाज का तरीका नहीं जानता है, ऐसे ऐसे महल्लात हैं। उन मोहल्ला से एक बच्चे को किसी तरह से खींच करके खानकाह रशीदिया में लाया जाता है और वो बच्चा आकर के हाफिज कुरान बनता है, नमाज का तरीका सीखता है, फातिहा का तरीका सीखता है, तब जाकर के अपने मोहल्ले में, लोगों के मोहल्ले में घर घर जाकर के फातिहा करता है। और ये मदरसे हैं और खानकाहें मैंने खुद देखा है कि कुछ मोहल्ले तो ऐसे हैं कि जिनमें ज़बीहा का क्या नामो निशान होता है, इनके ज़बा खाना चाहिए और इनका ज़बीहा नहीं खाना चाहिए, किस तरह से जानवर होना चाहिए हमारे लिए हलाल, वो भी नहीं जानते। मैंने वहाँ जाकर के गांव का नज़ारा किया और उनसे पूछताछ किया तो लोग बता रहे थे कि हजरत जब कोई जानवर अगर मर भी जाता है ना तो मुसलमान यहाँ पर खा लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह से मसाइल से लोग दूर हैं, लेकिन मुसलमानों उसी महल्ले से भी
हम लोगों ने एक एक दो बच्चों को चुन करके किसी तरीके से उनके माँ बाप को समझा करके इस खानकाह रशीदिया में लाते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे खास तौर से इन 2 साल के अंदर वो बच्चे हैं जो इस मैनपुरी के हुदूद के अंदर के और आज मसाइल नमाज सीख रहे हैं। वो बच्चे फातिहा का तरीका सीख रहे हैं, नमाज जुमा और ईद बकरीद का तरीका सीख रहे हैं। आज मुसलमानों के अंदर हाल ये है कि अभी ईद आ रहा है, ईद अभी आ रही है, ईद के मौके पर लोगों को ईद की नमाज का तरीका मालूम नहीं। एक बच्चा अगर अपने बाप से पूछ दे कि पापा हमें ईद का तरीका बताइए, ईद की नमाज कैसे पढ़े जाते हैं, उनमें कितनी तकबीरात होती हैं, तो बाप का सर झुक जाएगा, नीचा हो जाएगा, उसकी निगाहें नीची हो जाएंगी। वजह यह है कि उनको मसाइल ईद मालूम नहीं है, मसाइल नमाज मालूम नहीं है। तो मुसलमानों हमें नमाज का तरीका अच्छे से आना चाहिए। और अगर हम आज दूर हैं तो वजह इसकी ये है कि हमें तालीम नहीं, हमारे अंदर इल्म नहीं, हमारे अंदर जानकारी नहीं है। आज भी इस खानकाह रशीदिया के अंदर इस माह रमज़ान में आकर के लोग मसला पूछ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आकर के मसला पूछ रहे हैं और ये दीन हासिल कर रहे हैं। लोगों की जमात ईशा के बाद आती है और बैठ करके सवाल जवाब करते हैं। इस मैनपुरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे हालात भी हैं, लेकिन याद रखिए हम भी आज घर को छोड़ करके, अपने महल्ले को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे हैं तो सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। इस खानकाह रशीदिया के जरिए जो आज हम खिदमत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। अगर हम चाहते तो घर पे भी रह सकते थे, लेकिन आप एक कमी है, आप आएँ और मसाइल पूछ करके खानकाह रशीदिया में अपना सलीका सीखें, अपने अंदर की जो कमियाँ हैं उसको दूर करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी कमी को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखें